law of conservation of mechanical energy. Now today we are going to discuss about the conservation of energy, and also we are going to discuss about the collisions, right? Okay, now we are going to first discuss about the मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्वेशन. बच्चा लोग तो अपन शुरू से ही पढ़े हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड. ठीक है, तो आज की तारीख में मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो एनर्जी प्लस the mass and energy both together are conserved, right? But when I talk about the conservative forces, right, the energy, the mechanical energy is conserved, right? If I talk about the conservative forces, only in the case of the conservative forces the mechanical energy is conserved. That means the sum of kinetic energies and the potential energies at any point remains constant throughout the motion. It does not depend on time, position, and this is called as the law of conservation of the mechanical energy. That means the sum of the kinetic energy final plus kinetic energy final, potential energy final, is equal to the kinetic energy which was initial plus the potential energy which was in the initial state. Now, please mind this is applicable only and only for the conservative force. If the force is non-conservative, then you cannot directly apply the law of conservation of energy. You have to make slight changes according to the problems. I'll tell you when, but general, right? If the force is conservative, you apply the law of conservation of energy. This is one of the conservatives law, right? Okay, the another law is the law of conservation of the linear momentum. Now, not only the energy is conserved, but anytime the linear momentum is also conserved. That means, what is the condition for the linear momentum is to be conserved? So, for this law to be valid, according to the second law, what do we know? That force is equal to rate of change of momentum with respect to time. Now, if we have our external unbalanced force, that is equal to 0. I'm not applying any unbalanced force. In that case, we know rate of change of momentum with respect to time is equal to 0. किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? अरे बच्चों, डिफरेंशिएशन किसी चीज का 0 आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि जिस चीज को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं वो कांस्टेंट होगा. यानी यहां पर मेरा मोमेंटम p का मतलब यहां पर मैंने मोमेंटम लिया ना, तो ये जो मोमेंटम है मेरा कांस्टेंट हो जाएगा. दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. That means the law here, in the absence of the external forces, the total momentum is conserved. If there are many bodies in the system, suppose I'm not talking about a single body. That means if there is a system in which I have got n number of bodies, and I call this as a system with so many bodies inside it, and all of them are moving, and there is no external forces whatsoever it is acting on the body, then the momentum of all the bodies put together will always be a constant. Right? So the law of conservation of momentum is also valid in any of the cases. It depends on the frame of reference. Frame of reference पर depend करेगा क्योंकि velocity depend करती है, तो law of conservation of momentum frame of reference पर depend करता है. ठीक है? Okay. Now the collision of the bodies. Now one more very important thing re bachche log. Now if you have this law of conservation of momentum, the law of conservation of momentum is universal.
दैट मीन्स आप एटम के अंदर की कोलिशन की बात करोगे तो भी law of conservation of momentum is valid. And if you talk about the collisions which is there happening in the universe between the two large stars, or any explosion which is ever happening in the universe, and the macroscopic condition is also valid. Law of conservation of momentum is valid in all the cases. छोटी सी छोटी बॉडी के लिए भी वैलिड होगा और बड़े से बड़े वैलिड के लिए भी वैलिड होगा. So this, using these laws, that is the law of conservation of the mechanical energy and the laws of conservation of momentum, we are going to talk about the collision of the bodies. Okay, now whenever I talk about the two bodies which are colliding with each other, I've got two bodies, right? Any two bodies in the universe. Now, I am going to talk about, like, if you have got a nuclear like bombarding which is going on. So I'll say nucleus go in the neutrons. I accelerate the neutrons and neutrons go and collide with the nucleus. Okay, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गया. ठीक है, अभी कभी कभी ऐसे भी होता है कि स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो जाके किसी से टकरा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक हो गया. उसकी बात करूं, राइट? या फिर कोई कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कोई एस्ट्रॉइड आ गया, वो धरती के पास आ गया, धरती पे आके कोलाइड कर लिया, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, तो एस्ट्रॉइड के बड़े बड़े टैंक्स वगैरह बन जाते हैं. उस केस की मैं बात करूं, या फिर दो प्लेन्स के बीच में टक्कर मानूं, या फिर हम दो गाड़ियों के बीच टक्कर मानो, किसी भी प्रकार का कोई भी कोलिशंस के लिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दो बॉडीज में टक्कर हुआ तो एनर्जी कैसे कंजर्व होगी, एनर्जी का क्या होगा, मोमेंटम का क्या होगा, वो अगला हमारा जो टॉपिक है. दिस इज द कोलिशन ऑफ द बॉडीज. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन डिटेल्स. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आई होप. सो लेट अस स्टार्ट इट, राइट? So collision between the two bodies. What is collision? Collision is said to take place when either of the two bodies physically collide against each other, or when the path of one is changed by the influence of the other. अरे ये क्या बोला उन्होंने? हम तो अभी सिर्फ टक्कर सोच रहे थे. Collision of, मतलब ग्रेविटी से भी हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से भी. बस बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली कोलाइड करे तब भी हो जाएगा. अगर एक्चुअली कोलाइड नहीं करे, जैसे हमारे पास टक्कर से, तो बॉडी का पाथ तो चेंज होता ही होता है ना. लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ कि बॉडी पे टक्कर हुआ ही नहीं, जैसे हमने कहा कि भाई अर्थ चुपचाप जा रहा था, कोई मासिव स्टार, मान लो कुछ ऐसा हुआ, आज नहीं हजारों सालों के बाद हमारा अर्थ के पास कोई और बड़ी सी कोई मासिव सी कोई चीज आ जाए. हो सकता है वो कोई प्लैनेट हो, या फिर हो सकता है कि कोई स्टार हो, या कुछ भी हो. तो अर्थ बेचारा उनके सामने अगर छोटा सा है, तो अर्थ का पाथ, अर्थ का जो ओरिजिनल पाथ है अराउंड द सन, वो चेंज हो जाएगा. तो हम इसको भी कोलिशंस कहते हैं. अभी भी तो होता है. हमारा जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद वो अर्थ के चक्कर पहले लगाता रहता है, और अगर चक्कर लगाते लगाते हाँ हम रॉकेट्स को निकालते जाएंगे और वो पहुंच गया, जैसे हमने भी मंगलयान को किया, तो मंगलयान में क्या किया हम लोग? एस्केप वेलोसिटी. हाँ, एस्केप वेलोसिटी नहीं किया बेटा, हम एक्सपैंड करते गए, उसकी साइज ऑफ द ऑर्बिट को एक्सचेंज, हाँ ऑर्बिट बढ़ा गए. एस्केप तो वो एस्केप हो जाएगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा हमारे पास. हम उसको बढ़ाते गए वेलोसिटी, तो वो कहाँ चला गया? मार्स के पास चला गया. अब मार्स के पास जाने के बाद मार्स उसको इन्फ्लुएंस करने लगा, उसकी ग्रेविटी, तो उसकी पाथ चेंज हो गई, वो अपने पास बुला लिया. हमारी जो अर्थ की जो ऑर्बिट छोड़ करके वो मार्स के ऑर्बिट पे चला गया. कोलिशन तब भी हुआ, ये मान के चलेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पर एक्चुअल टक्कर तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ पाथ को चेंज किया हमने, तो ऐसे को भी हम कोलिशंस मानते हैं. ठीक है? इज दिस क्लियर? एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिशन, द मोमेंटम, द काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. What are the two important things which is going to change? One, the momentum is going to change, and other, I am concerned as the kinetic energy is also going to change during this collisions, right?
ओके, सो जब भी कोलिशंस होगा तो हम जानेंगे कि कोलिशंस की वजह से मोमेंटम चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की चेंज होगी, ठीक है। लेकिन जितने भी फोर्सेस हैं जिस टक्कर में, जिस कोलिशंस में होंगे, ऑल दिस फोर्सेस आर द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस, दैट इज द इंटरनल फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। कोलिशंस में मैंने कहा एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की चेंजेस हो जाएगी। लेकिन जब हम टोटल मोमेंटम की बात करेंगे तो टोटल मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिशन, व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ द कोलिशन, द टोटल मोमेंटम will remain conserved in any type of the collision. The total momentum will remain the collisions. आज कई प्रकार के collisions हम जानेंगे, लेकिन इसमें जो हम सिंपल दो चीजों के बारे में जानेंगे, आज का टॉपिक है 1 head on collisions and other as the oblique collisions. Now what do you understand by the head on collisions? head on collision मतलब सीधे दो बॉडीज आएंगे और टक्कर मारेंगे, सीधे सीधे, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों ने टक्कर मारे, हेड ऑन कोलिशंस। ऑब्लिक कोलिशंस में मतलब क्या आएगा, एक बॉडी एक डायरेक्शन से आएगा, दूसरा दूसरे बॉडी से आएगा, एंगल बनाते हुए आएगा और दोनों टकराएंगे। सो दिस टाइप ऑफ द कोलिशंस विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज। क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज एकदम सेम नहीं रहेगा, कहीं से भी आएगा और टक्कर मारेगा, ठीक है। नाउ अब टाइप्स ऑफ द कोलिशंस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, हमने यहां पर टाइप्स बताया बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोलिशंस। क्या क्या है, पहला है हमारे पास दैट इज हेड ऑन हमने पढ़ा, और दूसरा हमने ऑब्लिक कोलिशंस पढ़ा, ठीक है बेटा। और भी तो टाइप ऑफ द कोलिशंस होंगे जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर चेंज करके बताएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि कोलिशन के बाद की काइनेटिक एनर्जी और कोलिशन के बाद की, पहले की और बाद की काइनेटिक एनर्जी, कोलिशन के पहले और काइनेटिक एनर्जी कोलिशन के बाद की एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। तो इस पे हमारे पास दो प्रकार के कोलिशंस हो जाएंगे, एक इलास्टिक कोलिशन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, kinetic energy before the collision is equal to the kinetic energy after the collision. पहले जितने काइनेटिक एनर्जी था सिस्टम में, अभी भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द इलास्टिक कोलिशन, राइट। मोमेंटम हर प्रकार के कोलिशन में कंजर्व होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब वो इलास्टिक कोलिशंस रहेगा तभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी before the collision is equal to the kinetic energy is after the collision. Naturally, what do you understand by the inelastic collisions? Whenever I talk about the inelastic collision, kinetic energy conserve ही नहीं होता, kinetic energy loss हो जाएगा। कैसे लॉस हो जाएगा? टक्कर जब होता है ना तो धड़ाम आवाज आती है, आप लोग दौड़ के जाते हो, अरे क्या हुआ, इसका मतलब साउंड एनर्जी, या सो दैट जो एनर्जीज ऑफ द बॉडीज था उसमें साउंड एनर्जी में बदल जाती है, थोड़ी सी पार्ट, यानी उसमें नुकसान हुआ उसका, ठीक है। साउंड एनर्जी के साथ साथ कई बार ऐसे होता है कि स्पार्क्स निकलते हैं, स्पार्क्स होती है, आग ही लग जाती है कभी कभी, तो है ना। तो स्पार्क्स तो होता ही है, जब भी एरोप्लेन की बात करो, वो जब लैंड करता है तो स्पार्क्स निकलता है बेटा। तो कोलिशन तो हुआ, प्लेन का कोलिशन ग्राउंड से, तो स्पार्क हुआ, है ना। आवाज में कुछ चला गया, कुछ साउंड में चला गया, तो कुछ लाइट में चला गया, स्पार्क निकली तो लाइट भी तो निकला ना, तो उस पे निकल गया। स्पार्क निकला तो गर्म भी हुआ ना, तो वो निकल गया। अगर मान लो स्पार्क नहीं भी निकलेगा तो भी कोई चीज बहुत ऊपर से नीचे गिरती है या जोरदार टक्कर होता है, तो टक्कर होने के बाद
चीजें गर्म हो जाती हैं, है ना। हैमर लो और फटाफट पीटो उसको, किसी और लोहे को, तो क्या होता है, वो जो लोहा जिसको पीट रहे हो और हैमर खुद भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब जब हम एनर्जी लेके, काइनेटिक एनर्जीज लेकर के कोलाइड करवा रहे हैं, हैमर लिया और दूसरे लोहे को जोर जोर से पीटा, तो क्या हुआ, इसमें क्या हो गई थी, एनर्जी आपकी कंजर्व हुई है ना बच्चा, हुई तो है। लेकिन एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व हुई। काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, नुकसान हो गया। क्यों, क्योंकि आवाज में चला गया, लाइट में चला गया, हीट में चला गया, पता नहीं और किस किस में चला गया। तो हमेशा याद रखना, अगर इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, राइट। Okay, now is this clear to all of you? Kinetic energy conserve हुआ, elastic collision नहीं हुआ, कम हो गई एनर्जी काइनेटिक वाली, तो inelastic collisions। अब तीसरा एक स्पेशल टाइप ऑफ inelastic collision है। जो तीसरा परफेक्ट inelastic collision है, इसमें क्या होता है कि टक्कर होने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर देते हैं। मतलब हमने, मान लो कि कोई चीज है हमारे पास चल रही है, रबर की है, और हमने उसके अंदर कुछ डाला, तो जैसे बंदूक की गोली ही डाल दी, रबर का बॉडी है, तो बंदूक की गोली रबर के अंदर चली गई ना, स्टिक हो गई उसके साथ, अब दोनों संग संग चलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट inelastic collision। चलो एक और जाते हैं हम लोग परफेक्ट inelastic collision का अच्छा खासा एग्जाम्पल। मान लो आप ग्राउंड में खेल रहे हो, आपका दोस्त दौड़ते हुए अगर एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, राइट, तो क्या करना है आपको, होते हैं बेटा कि परफेक्ट inelastic collisions, राइट। तो आपने क्या देखा, जस्ट मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, जैसे एक बच्चा, आप और आपका एक दोस्त दोनों दौड़ के खेल रहे हो, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है प्लेग्राउंड में, जब हम दौड़ते हुए आते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, और टकरा के बच्चे दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं, ठीक है। पहले आपके पास कुछ मोमेंटम था, आपके फ्रेंड के पास में कुछ दूसरा मोमेंटम था, जब आप दोनों आपस में टकराते हो और दोनों एक साथ गिरते हो, तो दैट मीन्स इट इज एन imperfect inelastic collision because both the body has stick together and they are falling together. So in any type of the inelastic collision, after the collision the bodies will move together, stick and move together. So such a collision is called as the perfect inelastic collision. Whatever is the type of the collision, one thing I repeatedly tell and ask you to write also in your notes is that कि momentum remains conserved in all type of collisions. In all the type of the collisions you have got, the momentum is conserved. Okay, now this is the very important part which we should understand. Ma'am, एक minute. हाँ. The next one what we are going to do is talk about the coefficient of restitution. ठीक है भैया, अगर मान लो कि हमारी collisions inelastic हैं, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हमको सीखना होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज the ratio of the impulses of the recovery and deformation of either body. Impulses of recovery and deformation, एक बॉडी टकराती है, वो डिफॉर्म होती है और रिकवर होती है, मतलब जैसे बॉडी एक कोलिजन होता है तो बॉडी का शेप चेंज होता है, बहुत कुछ उसके मॉलिक्यूल्स पे चेंजेस आती है, तो वो डिफॉर्म होता है और वापस रिकवरी। तो हम क्या कहते हैं इसके लिए, इट इज E and E is equal to the velocity of separation along the line of impact divided by velocity of approach
along the line of impact. जब मैं collision के बारे में डायग्राम करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा. Velocity of the separations along the line of impact and velocity of approach along the line of impact. Value of E is 1 for elastic collision, 0 for perfectly inelastic collision, और कोई सिंपल inelastic collision हो तो E की वैल्यू 0 और E के बीच में लाई करती है. ठीक है, ये डेफिनेशन है. अब हम कोलिशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे. चलिए अब हम पढ़ते हैं. We will study about a very typical type of the collision, that is head-on elastic collision. हेड-ऑन कोलिशंस का मतलब होता है कि आपके पास इलास्टिक कोलिशंस है और हेड-ऑन. मतलब मैं यहां पर हेड-ऑन की बात करूं तो आई विल पुट अ स्ट्रेट line. The collision is happening in the straight line. Both the bodies of mass m1 and m2 are traveling along this line. They are not traveling by some other line. Let me consider there is one body of mass m1 and the another body of, say, that is equal to the mass 2. For reference, I'm going to take this as one of the body which is small and another body is comparatively a bit large. This is m2, and I've got a body which is traveling initially with u1 and this body is traveling with a velocity that is equal to u2. Now, for the sake, I'm taking everything along the positive x direction, but it can happen in the positive y direction, x direction and negative direction. दोनों, मतलब हम या तो पूरा y या तो पूरा x ले सकते हैं और दोनों बॉडी जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन पे जाए, ये दोनों अलग अलग जाएंगे तभी भी टक्कर होगा. लेकिन इस केस में टक्कर कब होगा? इस केस में टक्कर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी शुड बी ग्रेटर देन the velocity of the second body. तभी तो ये जाएगा और कहीं ना कहीं इससे जाकर के मिल जाएगा और दोनों बॉडी आपस में यहाँ पर टकरा जाएंगे. मान लो टक्कर होने वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर है. दोनों बॉडी ने टकराया. ठीक है, दोनों टक्कर आ गए, यहाँ दोनों टकरा गए. टकराए तो साउंड जो भी हुआ, टक्कर के बाद क्या हुआ? टक्कर के बाद दोनों बॉडीज वापस चलने लगेंगे. हमने कहा ये जो बड़ी वाली बॉडी है और छोटी वाली बॉडी यहाँ पर आ गई, दोनों फिर से उसी स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं. तो इसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू v1 और इसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v2. राइट, अगेन दे आर ट्रैवलिंग. फॉर द कन्वीनियंस से हमने x की पॉजिटिव डायरेक्शन पे लिया हुआ है. इस प्रकार के ये वाला, दिस इज द स्टेट बिफोर collision and this is when the collision is happening and this is happening after the collision. ठीक है, अब ये collisions हो चुका. अब what is the momentum before the collision and momentum after the collisions? यहां आप देखेंगे कि कोलिशंस है तो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही होना है. राइट, इन द कोलिशन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड. क्यों भाई? है ना, क्योंकि there is no external force acting in the सिस्टम. इस सिस्टम पर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई मोमेंटम को तो कंजर्व होना ही चाहिए. ठीक है, मोमेंटम को
कंजर्व करा देते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. यू कैन सी दैट द initial momentum will be equal to the final momentum. अच्छा, पूरा सिस्टम का ना, अकेले अकेले बॉडी का नहीं, पूरे सिस्टम का. तो पूरे सिस्टम की मोमेंटम की बात करते हैं. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी? m1u1 प्लस m2u2 m2 u2 that is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is according to the law of conservation of momentum. थोड़ा इधर उधर करते हैं, सारा m1 को एक साइड ले आते हैं एंड सारा m2 को अलग साइड में लेके आते हैं. सो m1 u1 minus m1 v1 that is equal to m2 v2 माइनस m2 u2. बेटा इसमें से आप क्या करो, m1 को कॉमन ले लो, u1 माइनस v1 that is equal to m2 and this is v2 minus u2. Mark this as equation number 1. Okay, ठीक है, फाइन. ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया. बेटा यहां पर पहला चीज हमने लिखा कि मोमेंटम कंजर्व हुआ. मोमेंटम कंजर्व हुआ. मोमेंटम कंजर्व हुआ तो हमने लिख दी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. और इलास्टिक कोलिशन है. हाँ, इलास्टिक कोलिशन में एक और चीज कंजर्व होती है और वो क्या चीज है? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. नाउ इन the case of elastic collision, kinetic energy is also conserved. इसका मतलब kinetic energy initial is equal to the kinetic energy final. What do you understand by this? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square, it is equal to half m1 v1 square plus half एक मिनट, m2 v2 का square. Again you take all the m1 to one side and m2 to the other side. What you will get? You will get, पहले तो half को cancel कर लो. So you will get m1 u1 square minus m1 v1 square. It is equal to m2 v2 square minus m2 v1 square, which we can write m1 and u1 square minus v1 square, it is equal to m2 v2 का square minus v1 का square. बच्चा लोग ये समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया है यहाँ पर? यस मैम. हाँ जी. या हमने सिंपल सा इधर से उधर कर दिया, मतलब मोमेंटम को कंजर्व किया और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया और मैंने दो इक्वेशन बना लिया. एक बार मोमेंटम कंजर्व, दूसरी बार में एनर्जी कंजर्व. ठीक है रे बाबा. इधर काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके इक्वेशन 2 बना लिया, मोमेंटम को कंजर्व करके इक्वेशन 1 बना लिया. अब इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ, मैम वहाँ पे U2 होगा ना? हाँ एक मिनट बेटा, या लिखना पड़ेगा, अपन को डिवाइड करना है ना. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. क्या मिला? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर.
divided by m1 u1 minus v1 divided by m2 v2 minus u2। देखो ये m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, ठीक है। अब किस फॉर्म में है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आता है तो वी कैन राइट दिस एज u1 माइनस v1 u1 plus v1 the whole divided by u1 minus v1 that is also equal to v2 minus u2 v2 plus u2 the whole divided by v2 minus u2, है ना। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म्स, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ u1 plus v1 it is equal to v2 plus u2. Now I'll mark this as the equation number 3, ठीक है। So this is what we got। भाई यहाँ आपको इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिखना चाहोगे तो u1 minus u2 it is equal to v2 minus v1, or we can write that v2 minus v1 divided by u1 minus u2 which is equal to 1। मैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? माइनस v2 माइनस v1। देखो यहाँ u1 माइनस u2 था, इसको मैंने चेंज कर दिया नेगेटिव साइन लगा करके, और ये हो गया मेरा u2 माइनस u1 बेटा, एंड दिस इज द वैल्यू 1 यहाँ पर फॉर elastic collision E यानी coefficient of restitution that is equal to 1. The coefficient of restitution for the elastic collisions we have got the value as 1. It's a very important point to remember, ठीक है। Put the values of this equation, that is the equation number 3. इसमें से हम v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। v1 की वैल्यू कितनी निकली? v2 प्लस u2 माइनस u1। बेटा क्या मुझे मालूम है मोमेंटम कंजर्व होता है? हाँ होता है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ना। भाई जब भी कोलिड होती है तो क्या क्या मुझे मालूम होता है? मास मालूम होता है दोनों का, इनिशियल वेलोसिटी मालूम होता है, फाइनल वेलोसिटी का क्या पता हमें निकालना होगा, है ना। कोई भी फाइनल वेलोसिटी को निकालना होगा तो हमने यहाँ से v1 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ v2। सो व्हाट इज द वैल्यू? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 के बदले में लिखेंगे v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2। ओपन करो ब्रैकेट को, क्या मिलनी है? यू विल गेट m1 v2 प्लस m2 v2, इसको पहले लिख ले, प्लस m1 u2 माइनस m1 u1, राइट। तो क्या करेंगे? सबको एक तरफ लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद यू हैव गॉट m1 u1 पहले से था, इधर का भी m1 u1 लेके जाओ तो m1 u1 दो बार हो गया, m2 u2 था और यहां से गया तो ये आ गया माइनस m1 u2 चला गया, है ना। और इस साइड में आपके पास v2 को कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से आपके पास m1 प्लस m2 बच गया, ठीक है। ओके, या इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स m1 u1 प्लस यहां पर आपने u2 ले लिया m2 माइनस m1 दैट इज इक्वल टू v2 इनटू m1 प्लस m2। बेटा इसमें से हम v2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये v2 ही तो चाहिए मुझे, तो v2 निकाला। सो v2 इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
plus m2 minus m1 into u2 the whole divided by m1 plus m2. Similarly, when we find v1, तो v1 कितने के बराबर हो जाएगा, m1 minus m2, देखो यहाँ m2 minus m1 था ना, यहाँ पर m1 minus m2 डिवाइडेड बाय m1, यहाँ पर प्लस m2 m2 m1 plus m2 plus 2 times of m2 u2 divided by m1 plus m2. So v1 की वैल्यू मिल गई और v2 की वैल्यू मिल गई. हमने यहाँ पर क्या किया था, पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 in terms of v2 u1 and u2 हमने सॉल्व किया तो ये हमको मिल गया. राइट, अब इसको लेकर के हमको स्पेशल केसेस निकालनी है. सो हमने यहाँ पर फाइनली देखा कि v1 की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, है ना. v1 जब था तो यहाँ पर u1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2. v2 is equal to 2 times of m1 divided by m1 plus m2 u1 plus m2 minus m1. देखो v2 जब हुआ यहाँ पर m1 minus m2 था, यहाँ पर m2 minus m1 divided by m1 plus m2 u2. ठीक है, फॉर्मूला याद करना है. अब आते हैं हमारे स्पेशल केसेस पर. स्पेशल केसेस इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आते हैं. भाई ये स्पेशल केसेस में अगर दोनों बॉडीज इक्वल है, ओके, तो इक्वल होंगे तो क्या होगा, जस्ट अ मोमेंट. या बच्चों, अगर हमने जो वेलोसिटी निकाली ना बच्चा, v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू को याद कर लो. v1 की वैल्यू कितनी थी और v2 की वैल्यू कितनी थी, अब लिखेंगे. मान लो कि ये जो पर्टिकुलर केस में हमारे पास v1 निकालना है और हमारे पास आ गया m1 is equal to m2. दो बॉडीज इक्वल मास, दोनों इक्वल मास वाले बॉडी आपस में टकराएंगे तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में क्या संबंध रहेगा. ठीक है, तो आपने क्या देखा, दैट इज v1. v1 का फॉर्मूला तो बोलो बच्चों, v1 का फॉर्मूला था आपके पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आपके पास u2 था. बेटा m1 इज इक्वल टू m2, तो इसको हम m लिख लेंगे. तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, m1 माइनस m2 तो हो गया 0 प्लस 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m, क्योंकि m1 प्लस m2 भी 2m हो जाएगा, 2 टाइम्स m2 हो जाएगा 2m एंड मल्टीप्लाइड बाय u2. अरे काटो, क्या मिला, v1 दैट इज इक्वल टू u2. वैसे ही अगर हमने v2 निकालने की कोशिश करी तो v2 का फॉर्मूला क्या रहता हमारे पास, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज u2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. और यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ मुझे u1 मिल जाएगा. बेटा यहाँ पर भी अपन m1 इज इक्वल टू m2 m डालते तो क्या मिल रहा है v2 की वैल्यू, this is going to be actually 0 plus 2 times of m1 divided by 2 times of m. ये दोनों फिर से वापस कैंसिल हो जाएगा, 2 times of m 2 times of m दोनों कैंसिल एंड that is u1. अरे क्या मिला, v2 is equal to u1. that means क्या हुआ, पहले बॉडी की वेलोसिटी मिल गई दूसरे को और दूसरे की वेलोसिटी पहले को. सो velocity of body exchanged. मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी ऐसी आई, उसकी वेलोसिटी u थी दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. मेरे पास एक और बॉडी है सेम मास की और वो जा रही है 5 मीटर्स पर सेकेंड से. दोनों इस रास्ते जा रहे हैं, टक्कर होगा और टक्कर होने के बाद
दोनों का टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद ये दोनों चलेंगे। चलने के बाद मैं एक काम करती हूँ, दोनों बॉडी को अलग अलग दिखा रही हूँ आपको। एकदम एग्जैक्टली मास उनकी सेम रहेगी ना, मास सेम रहेगी, लेकिन आप दोनों को टकरवा रहे हैं, दोनों टक्कर मार दिया और टक्कर मारने के बाद हमने क्या देखा, एक जो ग्रीन बॉल है और एक येलो बॉल है। तो ग्रीन बॉल की वेलोसिटी येलो बॉल को मिल जाएगी और येलो बॉल की वेलोसिटी आपको ग्रीन बॉल की मिल जाएगी। यानी ग्रीन बॉल जो 10 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा था वो अब चलेगा 5 मीटर्स पर सेकेंड पे, और जो 5 मीटर्स वाला था वो चला जाएगा अब 10 मीटर्स पर सेकेंड से जाएगा। वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं वही चीज और वापस ले लेती हूँ। मेरे पास एक बॉडी है और दूसरी बॉडी रेस्ट पर है, ये मूव कर रही है और ये बॉडी रेस्ट पर है और दोनों का मास इक्वल है ना। अगेन मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन बना दिया और इसको मैंने येलो बना दिया, और इसकी जो वेलोसिटी हमने लिया, इसकी जो वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू u, लेट मी टेक इट एज 5 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर u दैट इज इक्वल टू 0। टक्कर होगा दोनों में और टक्कर होने के बाद हम देखेंगे ये जो येलो वाला है वो चल गया, ये ग्रीन वाला अब क्या करेगा, जब अपने टक्कर दे करके पूरा इसको अपनी एनर्जी दे देगा। और अब आप क्या देखोगे, ये जो येलो वाला बॉल है, ये येलो वाला बॉल कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, ये होगा आपका 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका रेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बॉडी इक्वल मासेस के होंगे तो इक्वल मासेस में ऐसा होता है। दैट मीन्स वेलोसिटीज आपकी एक्सचेंज हो जाती है in the case of the elastic collision। ठीक है ना। तो ये वाली केसेस मैंने आपको बता दिया। Two bodies are of equal mass and the second body is at rest। तो क्या करेगा, पहला बॉडी अपना सारा जो वेलोसिटी है दूसरे को दे देगा, खुद रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला केस हम डालते हैं। इफ द बॉडी इज ऑफ नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द अदर, एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट पर एकदम नेग्लिजिबल मास का है। मान लें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सी दीवार है, बहुत बड़ी सी दीवार है और बहुत भारी भी है, पत्थर का बना हुआ है, और हमने क्या देखा कि एक बॉडी बहुत ही हल्का, एक बॉल है, सोच लो इलास्टिक कोलिजन्स करेगा इस बॉल के साथ। बॉल का मास कैपिटल M और ये जो बॉल का मास है, थोड़ा सा रंगीन दुनिया आ जाए, ऑरेंज कलर का हमने बॉल ले लिया। इस ऑरेंज कलर की बॉल जाती है, दीवार से टकराती है और इस ऑरेंज कलर का बॉल का मास मान लेते हैं कि छोटा सा m है। ठीक है, अब ये बॉल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से जाके टकराता है, इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी? इनिशियल मोमेंटम that is equal to mu plus capital M into 0। 0 दीवार तो रेस्ट पर था तो उसको मैंने 0 ले लिया, सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m into u। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है किसकी, इस बॉल की और बॉल की। तो बेटा v1 और v2, now we have got m1 is almost tending to 0 and m2 which is equal to capital M, it is very large। बेटा आप v1 और v2 का फॉर्मूला तो बताओ। v1 कितना निकाला था हमने, v1 निकाली थी m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2 times of m2 divided by m1 plus m2 multiplied by that is u2। u2 0 है और m1 almost equal to 0 है, तो पहले बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जरा देखिए, v1 it is equal to m1 minus m2। m1 minus m2, m1 तो 0 है, तो 0 minus capital M divided by 0 plus capital M into u1 plus
2 times of capital M divided by M मल्टीप्लाइड बाई U2 कितना था? 0 था रे बच्चा। तो इसको पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज माइनस m बाई m इंटू U1, mm कैंसिल विच इज इक्वल टू माइनस U। तो V1 क्या आ गया? अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं दैट इज V1 इज इक्वल टू माइनस U। होता भी तो यही है। बॉल को लिया, सीधे टक्कर मारे बड़ी सी दीवार में, बॉल क्या करेगा? जिस वेलोसिटी गया, माने अगर ये प्लस यू से जाता है तो वापस कितनी वेलोसिटी से आएगा? उसी रास्ते आएगा, रास्ता भी नहीं बदलेगा, उसी रास्ते से आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज रहेगा। तो बॉल, जो छोटी सी बॉल है, उसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन पहले जितनी मैग्नीट्यूड की थी उतनी ही मैग्नीट्यूड की होगी। समझ में आया? द velocity of smaller object has same speed as the initial value, but direction is रिवर्स्ड, उल्टा हो जाएगा। ये इसके बारे में बताएगा। अच्छा, यहीं पर आपके पास वेलोसिटी 2 का क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी 2? तो यू विल से दैट इज m2 minus m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into u2 प्लस 2 times of m1 divided by m1 plus m2 into u1। बच्चा, आपने यहां माना कि m2 को m, इसको 0 m into u2 है ना, प्लस 2 times m1 को 0 माना है u1 divided by u0 plus m। बेटा u2 कितना था? u2 0 था, है ना, तो इट इज 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। दीवार काहे चलने लगा बेटा? द बॉल और द ह्यूज बॉडी remains stationary, right? This is what happens, ठीक है? या हम एक केस समझेंगे यहाँ पर जिसमें एक बॉडी बहुत ही छोटी, दूसरी बॉडी बहुत ही बड़ी। लेकिन पहला वाला देखो, ये वाली केस में हमने माना था वॉल रेस्ट पर था, लेकिन वॉल रेस्ट पर नहीं, यहाँ पर बड़ी वाली बॉडी भी चल रही है। जैसे हमने देखा कि एक ट्रेन पे आप चल रहे हो और ट्रेन का मास बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कई बार ऐसे होता है ना, जो रास्ते में खेत में खड़े हुए जो बच्चे लोग रहते हैं, वो हाथ में पत्थर लेकर के ट्रेन पे मारते रहते हैं, है ना। तो वो जो पत्थर, उसका जो मास है दैट इज इक्वल टू m1 लिया मैंने, एंड दैट इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल। उसकी जो मास है बहुत ही छोटी है, और वो जो उसकी स्पीड, जो छोटा पत्थर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी इनिशियली u1 है, और ट्रेन बड़े मस्त अपनी स्पीड में जा रही है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u2। अब दोनों में इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब कैसे वेलोसिटी फाइनल होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। m1 is very very small as compared to that of m2, जिसके लिए हम ले सकते हैं this m1 is almost tending to 0, ठीक है। ओके, अब लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी v1 की और v2 की। चलिए, वेलोसिटी v1 किसका रहेगा? वेलोसिटी ऑफ द पत्थर, राइट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, राइट। सो फॉर्मूला बताएं इसका, आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 u1 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। अरे बेटा यहां देखो, m1 माइनस m2, m1 तो 0 था, m1 0 था, माइनस आपने क्या देखा, बोलो? कैपिटल M डिवाइडेड बाय, यहां पर भी 0 था, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M, एंड दैट इज u2। आपने क्या देखा? दिस M and M कैंसिल, राइट।
m and m cancels. What is v1? v1 will be equal to minus u1, mm cancel, that is plus of, that is 2 times of u2. अरे बाप रे, मान ले एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे ने पत्थर मारा, इसकी स्पीड कितनी होगी? चल बता कितनी होगी? 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड। चलो 10 मीटर्स रख लेते हैं, 20 मीटर्स रख लेते हैं। ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड तो बकायदा ज्यादा होगा ना। तो हम लोग अगर u1 को ऑलमोस्ट 0 बोलते हैं तो ये जो पत्थर की स्पीड है ना बेटा 2 टाइम्स ऑफ u2 हो जाती है। मतलब जितनी ट्रेन की स्पीड उससे डबल या थोड़ा सा कम भी हो गया तो भी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u2 माइनस u1। बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है। तो इसका मतलब कुल मिला के समझ में ये आता है बेटा कि जो स्पीड पहले थी, हाँ, वो उसकी स्पीड पत्थर की कई गुना बढ़ जाएगी। v1 will be definitely greater than the u1, स्पीड उसकी बढ़ गई। अब v2 के बारे में बताएं जरा, v2 के बारे में बताएं। v2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m2 minus m1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 multiplied by u2 multiplied by u2 plus 2 times of m1 divided by m1 plus m2 into u1। बेटा m1 तो 0 है, इसको पूरा हटा दे, है ना? बिकॉज m1 is equal to 0, हम इसको पूरा हटा देंगे। सो 2 times of m1 u1 divided by m1 plus m2, इधर लिख दो 0, इधर क्या लिखेंगे? m1 0 है तो ये क्या रहा? m by m into u2, u2 cancel, so what is v2? that is equal to u2। अरे ट्रेन के स्पीड में पत्थर मारने से कोई चेंज नहीं आती है, आपको भी मालूम है। एक छोटा सा पत्थर जब आपके प्लेन के पास आकर के लग जाता है तो प्लेन के स्पीड में कोई असर नहीं होता है, ठीक है? यस, क्लियर है ना? लेकिन आपको वो जो पत्थर के ऊपर में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, यही चीज होता है बेटा। प्लेन जब उड़ रही होती है तो बहुत ऊंचाई में जब उड़ते उड़ते क्या होता है कि कुछ चील, है ना, एक्चुअली वो चील के लेवल से भी ऊपर उड़ता है प्लेन, लेकिन जब कभी नीचे आ गया और वो चील के लेवल पर उड़ रहा है तो चील आया और प्लेन के विंडस्क्रीन से टकरा गया। इट्स अ वेरी डेंजरस अफेयर बेटा। क्या होता है? और वो छोटा सा प्लेन है मान ले, जिसका चील काफी बड़ा होता है। जब वो उतनी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो वो भी बहुत बड़ा होता है। ईगल का मास काफी होता है। ईगल का मास काफी होता है और प्लेन अगर छोटा हुआ तो एक्सीडेंट होता ही है। मान लो कि बहुत बड़ा एकदम अच्छा वाला एयरबस वगैरह जा रहा है और उसके विंडस्क्रीन पे भी टकराया तो भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि क्या होगा, वो जब चील इस विंडस्क्रीन से टकराएगा, चील तो बचना ही नहीं है ना? जब चील बचना ही नहीं है तो फोर्स तो कंजर्व होता ही, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। चील का वेलोसिटी डबल हो जाएगा। किसका? पहले की जो भी वेलोसिटी थे उससे कई गुना डबल हो जाएगा। वो भी किसका? प्लेन की वेलोसिटी का डबल। तो सोच बेचारी की क्या हालत होती होगी। तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन जब विंडस्क्रीन पूरा उसका जो बॉडी के पार्ट्स, जो प्लेन का, जो चील का बॉडी के पार्ट्स, क्योंकि उसमें वाइपर नहीं लगा होता है तो उस पे वाइपर नहीं लगा है ना, तो वो कैसे मिटाएगा? तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसकी पूरी व्यू खत्म हो जाती है। तो उसलिए वो प्लेन का जो एक्सीडेंट होता है वो काफी डेंजरस होता है। इज दिस क्लियर? आज की बातें सारी समझ में आ गई होगी। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा बताइए? आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ लगता है कब? हमने बताया ये जब लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब वो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। टोटल एनर्जी कंजर्व होगा लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी अ कांस्टेंट। फिर आए और बात की हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होना जरूरी है।
तो इनिशियल मोमेंटम विल बी ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। एंड उसके बाद हमने कोलिशंस के बारे में पढ़ा, और कोलिशंस जब भी होता है, कोलिशंस के हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो हेड ऑन कोलिशंस, ऑब्लिक कोलिशंस, है ना, दो प्रकार के कोलिशंस होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कोलिशंस के बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो इलास्टिक कोलिशन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इन इलास्टिक कोलिशन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिशन जिसमें हमने बोला कि टक्कर के बाद दोनों बॉडी आपस में एक साथ चल जाती है ना। लेकिन सभी टाइप के मोमेंट जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोलिशन किसी भी प्रकार का हो, एक चीज तो पक्की है, और वो क्या है वो चीज पक्की? वो चीज ये है कि मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट, दैट मींस द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बताया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, राइट। ई की वैल्यू परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन के लिए 1, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिशन के लिए 0, अदरवाइज ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। हेड ऑन कोलिशंस के बारे में, वो भी इलास्टिक हेड ऑन कोलिशंस के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें मोमेंटम कंजर्व किया और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया, और दोनों की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिशंस हमने डिराइव करके निकाल ली, v1 और v2 की वैल्यू। और उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ा है, और उस स्पेशल केसेस में हमने दोनों बॉडी का मास जब इक्वल रखा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। इसी में मैंने स्पेशल केस और बताया, अगर दो बॉडी टकरा रहे हैं, इलास्टिक कोलिशन है, और दूसरी बॉडी अगर रेस्ट पर है, तो पहली बॉडी चलते हुए आएगी, दूसरी बॉडी अगर मास भी बराबर होना चाहिए, इलास्टिक कोलिशन होनी चाहिए, और आपको ये जो इक्वल वाला जो मास है वो दूसरे वाले मास से टकराएगा, खुद रुक जाएगा, और पहला उस स्पीड से चलने लगेगा जितनी स्पीड से पहली वाली आया था, राइट। थर्ड वाला जो हमने देखा था, मास ऑफ एक बॉडी इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर, और एक बॉडी जो दूसरी बॉडी जो बहुत बड़ी है वो रेस्ट पर था। यानी हमने एग्जांपल लिया था कि बॉल को आपको कोलाइड करवाना है वॉल से विच इज एट रेस्ट, तो क्या देखा हमने, जो बॉल का वेलोसिटी है वो वही रहेगा जितना पहले था, लेकिन उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन पे उल्टी हो जाएगी। लेकिन जब दोनों बॉडी चल रहा होता है ना, दोनों बॉडी जब चल रहा होता है, तो हमने क्या देखा कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो पहली छोटी वाली बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी पहले जितना उसके पास में थी। अगर वो रुका हुआ पत्थर रहेगा, अगर उससे टक्कर होती है तो पता है आपको, ये जो वेलोसिटी है ना वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस टॉपिक पे चलेगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाय बच्चों, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय।